Hello, I am Dr. Suchitra Nikam. I have completed my MD in homeopathy. I'm practicing classical homeopathy since 16 years. I have completed my PGDMS and PG London also, and I have done a diet and nutrition course of DDHL from VLCC. I'm running my own clinic in Ajmera, Chinchwad. I'm working as a senior homeopath at Aditya Homeopathic Hospital. Which is Aditya Homeopathic Hospital, which is Asia's first private homeopathic hospital. Here we are treating n number of emergency patients with only classical homeopathy, without injection, ICU and surgery. I have learned homeopathy from my father, my first guru, Dr. Amar Singh Nikam, who is a renowned homeopath and a renowned author in homeopathy. Today, my topic is role of homeopathy in treating kidney problem and kidney failure conditions. Recently, we have celebrated the World Kidney Day on 10th March. Nowadays, kidney failure is very common. जब भी पेशेंट डायग्नोज होते हैं किडनी फेलियर करके या किडनी प्रॉब्लम करके, वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और उनको एक डर लगता है. Being a physician, it is our duty to giving them an assurance कि ये ठीक हो सकता है. इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं. So, role of homeopathy is very important क्योंकि there is no option in kidney diseases. Like, there is a treatment which is considering only dialysis या फिर transplant, और ये दोनों में भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं. तो अगर आपको डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ ऑप्शन चाहिए तो होम्योपैथी इज वेरी बेस्ट ऑप्शन. In our hospital, we are treating n number of patients. Even my father, उन्होंने भी अब तक n number of patients, thousands of patients किडनी के ठीक किए हैं जिनको अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं लगी है, just with homeopathic treatment. बहुत सारे. Let's start with homeopathy. What is homeopathy? Homeopathy is an art and science of rapid, gentle and permanent cure. And ये किससे हो सकता है? With the proper selection of a simillimum. होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन ने इन्वेंट की थी 1796 में. Being a MD homeopathic, being a MD physician, he has invented homeopathy क्योंकि उनको पता थे कुछ कुछ केसेस में there is limitation, पेशेंट की सफरिंग जो है वो उनको नहीं देखे गए थे, जिसके वजह से उन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट की थी. क्योंकि होम्योपैथी इज अ वेरी जेंटल साइंस और ये होम्योपैथी हैनीमैन के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है. And we as a homeopath, we should follow all the principles of Dr. Hahnemann to cure the patient from its root. So today we will start with the topic. किडनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे किडनी डिजीज ही आगे जाके कन्वर्ट होते हैं किडनी फेल्योर में. सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस few kidney diseases, few kidney conditions, so we can add the role of homeopathy on that also.
मैंने मेरे 16 ईयर्स के प्रैक्टिस में बहुत सारे किडनी पेशेंट्स देखे हैं, एंड इवन मेरे फादर डॉक्टर नीकम, उन्होंने भी अब तक थाउजेंड्स नंबर ऑफ पेशेंट अब तक ठीक किए होंगे किडनी के। तो ये सब कैसे होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन किडनी डिजीजेस? किडनी डिजीज क्यों होता है, कैसे होता है? whenever your kidney is damaged, तब किडनी के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो जो होता है डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने के बाद किडनी डिजीज जो है वो क्रिएट होते हैं, और ये किडनी डिजीज आगे जाके अगर ठीक से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो दिस कन्वर्ट इनटू किडनी फेल्योर। सो कौन से ऐसे कंडीशंस है किडनी कंडीशंस विच कैन लीड इनटू किडनी फेल्योर? सो फर्स्ट I would like to share you. First condition is hematuria. Hematuria इसमें क्या होता है कि किडनी में डैमेज होने की वजह से लीकेज ऑफ ब्लड RBCs थ्रू यूरिन होते हैं. So whenever there is a blood in urine, the condition is called hematuria. Hematuria के causes क्या होते हैं? तो hematuria में जो है मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन, बिकॉज ऑफ किडनी इन्फेक्शन. देन देर आर सो मेनी कॉजेज लाइक So the causes of kidney hematuria are UTI, kidney stone, cancer, kidney diseases like IgA nephropathy, glomerulonephritis, certain medications like anticoagulant, anti-cancerous drugs, bladder or kidney stone, enlarged prostate, and kidney injury. So all these causes and condition leads to hematuria. So हमको ये जज करना है, देखना है लैब टेस्ट करके कि हेमाचूरिया जो हो रहा है तो RBCs इन यूरिन कितने हैं, देन उसके हिसाब से व्हाट विल बी द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, ये हम उसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं. होम्योपैथी में बहुत सारे अच्छे ड्रग्स हैं जो हेमाचूरिया जो है अच्छे से ट्रीट और मैनेज कर सकते हैं. देन द सेकेंड कंडीशन इज प्रोटीनयूरिया. Proteinuria is the early sign of kidney disease. Most of the time it is very common condition, क्योंकि ये अगर आपको लो BP है तो भी देखा जाता है. whenever there is dehydration, whenever you are doing long term of exercise, then it will be there. Exposures to cold, all these conditions also can lead to proteinuria. But other than these conditions, there are certain diseases in which proteinuria देखा जाता है, like immune disorders, acute infection of kidney, cardiovascular diseases, congestive heart failure, poisoning, trauma, and preeclampsia. प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन भी आपको प्रोटीनूरिया जो है ये कंप्लेन देखी जाती है. देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशन. सो ये प्रोटीनयूरिया का कॉज क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज. डायग्नोसिस उसके करने के लिए फ्यू हमको लैब टेस्ट भी उसमें करने होंगे और अदर किडनी टेस्ट भी करने होंगे. ये करने के बाद फिर हम प्रोटीनयूरिया ट्रीट कर सकते हैं विद होम्योपैथी. बट अगर हमको उसका कॉज पता है सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू ट्रीट द प्रोटीनयूरिया. देन the next condition is kidney stone. Kidney stone is very common and there is a very good role of homeopathy in kidney stone. Everyone knows whenever there is a buildup of certain minerals in kidney that can take into the formation of kidney stone. For example, ज़्यादा यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम फॉस्फोरस हो गए तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्म होते हैं किडनी में. तो ये किडनी स्टोन जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्मॉल और लार्ज. किडनी स्टोन अगर स्मॉल होते हैं दैट कैन ईजीली पास आउट,
उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट वेन एवर द स्टोन इज लार्ज, एट दैट टाइम आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है. देर विल बी बर्निंग, देर विल बी हिमैचोरिया, देर विल बी शार्प पेन इन योर बैक रीजन, साइडवेज, इन लोअर एब्डोमेन एंड ग्रॉइन रीजन. सो ये किडनी स्टोन अगर ज़्यादा लार्ज है तो उसके हिसाब से हमको पेशेंट का पूरा केस लेके उसको ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मोडालिटीज़. पेशेंट को कौन सी पोजीशन में अच्छा लग रहा है, कौन सी पोजीशन में पेन उसका बढ़ रहा है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमको कंसिडर करने होते हैं. सो किडनी डिजीज में किडनी स्टोन जो होता है वो तो हम होम्योपैथी से अच्छे से मैनेज करते ही हैं. बट नॉट जस्ट द किडनी स्टोन, देर आर चांसेस लाइक बहुत सारे लोगों में टेंडेंसी होती है जिसमें बार बार स्टोन फॉर्म होते हैं. So the homeopathy will help you in treating the tendency of kidney stone formation also. तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारे अच्छे से रेमेडीज हैं. बहुत सारे लोगों को पता है कि किडनी स्टोन, इसके लिए बोवेरिस, वल्गैरिस, टिंचर से लेके बहुत सारे पोटेंसी, बहुत सारे लोग बिना पूछे ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये सब ट्राई करते हैं. बट क्लासिकल होम्योपैथी जिसमें हम ये सब फॉर्मूलाज और फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होती है, इसमें हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पेशेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ठीक से डिटेल से उसका केस टेकिंग लेके उसको स्टडी करके दी जाती है. फिर जाके वो स्टोन कितना भी बड़ा हो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो. सो ये तो हो गया किडनी स्टोन. बट वाइल ट्रीटिंग किडनी स्टोन यहाँ पे भी आपको कॉज ट्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन? मोस्ट ऑफ द टाइम डाइट की वजह से आपका जो डाइट है अगर ठीक से नहीं होगा देन यू विल फेस द किडनी स्टोन प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ द वाटर ऑल्सो, ज़्यादा मिनरल्स वाटर्स में होने की वजह से भी किडनी स्टोन फॉर्म होते हैं. देन इमोशनल स्ट्रेस, देन heavy protein diet, even obesity can lead to kidney stones. Whenever there is some digestive disorder जिसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, उस केसेस में भी किडनी स्टोन ज़्यादा होता है. सो वी हैव टू सी कि किडनी स्टोन का कॉज क्या है, तो ही जाके हम उसको अच्छे से और रूट कॉज से ठीक कर सकते हैं. इवन बहुत सारे पेशेंट हैं, उन लोगों को सप्लीमेंट्स लेने की आदत होती है. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर टेकिंग सम हर्बल सप्लीमेंट्स और एनी अदर सप्लीमेंट्स विच कैन ऑल्सो लीड्स टू द स्टोन फॉर्मेशन. सो हमको होम्योपैथी में किडनी स्टोन ट्रीट करते टाइम पे पेशेंट का डाइट क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सब को और उसका कॉज क्या है, इसको भी प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमको सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं करना है बट उसका कॉज, उसका रूट कॉज जो है वो भी हमको निकालना है और वो भी हमको ठीक करना है. सो प्रिवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट कंडीशन इज अक्यूट किडनी इंजुरी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ज़्यादा दिन के लिए बेड रिडन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बड़े टाइम से बीमारियाँ होती हैं, अंडर whenever they are hospitalized for a long time, they get this acute kidney injury. This is a life threatening condition. अगर ये हमको अर्ली डायग्नोज होती है और पेशेंट हमारे पास जल्दी आता है तो हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं विद होम्योपैथी. लाइक आफ्टर द गैस्ट्रो इन्फेक्शन यू कैन गेट डिहाइड्रेशन एंड इसकी वजह से भी अक्यूट किडनी इंजुरी हो सकती है. देन द नेक्स्ट कंडीशन इज किडनी इन्फेक्शन. Kidney infection is very common because of the stone and other obstructions. It can be caused by bacteria from the urinary tract, जिसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन होता है. So whenever there is an infection, it will damage the filtration, kidney filtration and kidney function. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेप्सिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है. Here I would like to share a case. हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसको मल्टीपल स्टोन्स थे.
and because of this multiple stone there is a sepsis. सेप्सिस होने के बाद वो पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले रहा था and the pain was very severe. With that, because of sepsis there is fever and chill and many other complaints. तो इस टाइम पे उसने होम्योपैथी चूज करके वो हमारे हॉस्पिटल में आ गया एंड वी स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. हमने उसका केस लिया. केस लेने के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाला. उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उस टाइम पे उसके सिम्टम्स मैच करके आर्सेनिक आ रहा था. हमने आर्सेनिक उसको दे दिया. सो आर्सेनिक एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के बाद वो पेशेंट सेप्सिस में से भी बाहर आ गया एंड इवन उसके जो मल्टीपल स्टोन थे वो भी मेडिसिन की वजह से पूरे फ्लश आउट हो गए. सो यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक वी स्टॉप द पेशेंट्स एंटीबायोटिक एट दैट टाइम एंड विद होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वी ट्रीट दिस केस सक्सेसफुली. सो आपके ऊपर है कि आप कैसा केस लेते हो, आप आपके होम्योपैथी पे कितना कॉन्फिडेंट रखते हो और आप किसको इम्पोर्टेंस देके कैसे रेमेडी चूज करते हो, इसके ऊपर ये मैनेजमेंट होती है. सो विदाउट एंटीबायोटिक ऑल्सो यू कैन ट्रीट द पेशेंट. इवन यहाँ पे मैं और एक केस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने मेरे इंस्टा पे भी बताया है क्लिनिकल टिप्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप. मोस्ट ऑफ द टाइम यूटीआई के केसेस हमारे पास आते हैं. तो यूटीआई में क्या होता है, फीवर, चिल्स, ऑल दिस सिम्टम्स आर देयर and even the frequency of urination is there, scanty urination is there, burning is there, all these things. इस टाइम पे सर के पास भी और एक ऐसा ही केस आया था जिसमें पेशेंट को सेप्सिस था और नेफ्रोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एंटीबायोटिक उस पर ट्राई किए थे बट देयर वॉज नो यूज एट ऑल. सो उस टाइम पे नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसको सजेस्ट किया कि आप डायलिसिस स्टार्ट करो. बट पेशेंट वॉज नॉट विलिंग टू स्टार्ट द डायलिसिस. तो पेशेंट ने होम्योपैथी का ऑप्शन चूज किया. वो हमारे हॉस्पिटल में आया. सो यहाँ पे whenever there is a abundant pus cells in urine and the patient is chilly, offensive discharges, septic condition, the patient look was very toxic. At that time, Dr. Nikam, my father, he chose the remedy Pyrogen 200 with all his acute totality and the result was shocking. Next day the urine report was done and the pus cells was reduced from abundant to very trace, means बहुत minimum pus cells थे उसमें. So without, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी फेल हो रहे हैं, जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट भी डायलिसिस सजेस्ट कर रहे हैं, सेप्टिक कंडीशन में है पेशेंट, है सेप्सिस में है, टॉक्सिक लुक है उसका, वहाँ पे सिर्फ पायरोजन 200 के एक डोज ने पेशेंट को सेप्सिस में से बाहर निकाला विदाउट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक. यहाँ पे सर ने एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन में उसको पायरोजन 200 दिया था एंड देन वी कंटिन्यू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके बाद पेशेंट अभी भी अच्छे कंडीशन में है. उसके बाद अभी भी उसको कभी यूटीआई भी नहीं हुआ है एंड ही इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ. सो पायरोजन 30 का रोल हमने बहुत सारे केसेस में देखा है. इट्स अ वेरी गुड होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक, यू कैन कॉल इट. सो ये तो हो गया किडनी इन्फेक्शन का. देन all these condition, like there is condition like nephrotic syndrome which is also treated with homeopathic medicines. Nephrotic syndrome में patient को steroid start कर देते हैं, but in homeopathy we can reduce the dose of steroid and give him a constitutional medicine and we can manage the protein loss and nephrotic syndrome with homeopathy. Then there will be ARF, acute renal failure. Most of the time suddenly body में कुछ changes होते हैं and kidney का function suddenly stop होता है. This will be an acute renal failure condition. And ये अगर proper time पे ठीक नहीं किया गया, the patient land up into chronic renal failure. So CKD, also called as the chronic kidney disease. Chronic kidney disease ये बहुत common है आजकल. Not just in India, even worldwide.
1 out of 10 patients are suffering from CKD nowadays. And this is related to lifestyle disease, क्योंकि diabetes, prolonged diabetes and hypertension will cause a CKD easily. So CKD, most of the time CKD के पेशेंट होते हैं वो अनडायग्नोज होते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो इजीली आपको पता नहीं चलते हैं. इफ द पेशेंट नो हिज बॉडी, पेशेंट का खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान है, अगर उसको बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो उसको पता चल रहा है, वो उसको लिए कंसर्न करके कंसल्ट कर रहा है फिजिशियन को, तो ये जल्दी से ठीक होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट निगलेक्ट ऑल दिस सिम्टम्स और वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से सीकेडी डेवलप होता है. सो सीकेडी में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, कॉज क्या है सीकेडी का? जैसे मैंने बताया, इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की वजह से. टाइप 1 डायबिटीज इज द मेन कॉज. 70% of the patients are mostly suffering from hypertension, which can leads to the CKD. Then nowadays there is drug abuse, which is like patients are taking self medications. बहुत सारे लोग एनाल्जेसिक कॉमनली यूज कर सकते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ऑल्सो दे आर यूजिंग इट. So all these NSAID drugs and analgesics and antibiotics which affect the kidney function, which can leads to inflammation of kidney, and all these later on converted into CKD. So ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, ये आपके खाने में या बोल सकते हैं सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है. Whenever there is a polycystic disease in the family or cystic diseases of the kidney which can convert into CKD, then there are few pre-renal causes, like because of blood loss and dehydration that can land up into CKD. There will be some post-renal causes, like because of the enlargement of prostate, there can be a bladder obstruction, there can be a kidney stone which can lead to CKD. So all these causes are very important while treating the CKD patient. तो पेशेंट का कॉज क्या है, ये अगर हमको पता है तो हम उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं एंड फर्दर उसका जो प्रोग्रेस है वो भी रोक सकते हैं. एंड प्रिवेंशन इज ऑल्सो ईजी फॉर अस अगर हमको उसका कॉज पता चले तो. व्हाट आर द सिम्टम्स? CKD में most of the patients are suffering from fatigue, tiredness, loss of appetite. There will be less urine, scanty urine, or there will be frequency of urination. Then there will be generalized swelling, swelling of legs, ankle, foot. Then there will be shortness of breath, lethargy. So all these are the symptoms of the CKD. And if you are doing the lab investigation, then you will come to know there will be increase in phosphorus level, increase in potassium level, uric acid भी इन लोगों में बढ़ा हुआ देखा जाता है. Then decrease output, proteinuria will be common. All these in patient, albuminuria जिसको हम बोलते हैं. So all these signs and symptoms are very important to confirm the disease. Then अगर CKD ठीक टाइम पे या ठीक से ट्रीट नहीं हुआ, then it can leads to complications like there will be anemia, there will be pericarditis, and there will be cardiovascular disease. All these are the complications of CKD. So as a physician, it is our role to diagnose it, to treat it very well, and also prevention is very important if you know the cause of the disease. Most of the time in allopathy, what is the treatment for kidney failure? Everyone knows there is only two options. First, dialysis, and second is transplant. Dialysis is a life saving, but इसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है. इट कैन लीड टू सर्टन साइड इफेक्ट्स लाइक पेशेंट का स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है, देयर विल बी वीकनेस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो डायलिसिस के अलावा दूसरा ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट, बट समटाइम्स ट्रांसप्लांट में भी पेशेंट को
वो किडनी कितना सूट होता है नहीं होता है, उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस भी बॉडी में आ सकते हैं। तो एलोपैथी में ये दो ही ट्रीटमेंट है। अगर आप सीकेडी में कोई भी स्टेज में आप होम्योपैथी चूज कर सकते हो, तो देर आर वेरी गुड रेमेडीज इन होम्योपैथी, and homeopathy will help you in treating the complications of CKD. Also, it will help you in reducing the further progress of the disease. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ हमको इसका प्रिवेंशन भी पता होना चाहिए। What are the things which leads to CKD? आपका डाइट, अगर आप हेवी प्रोटीन डाइट लेते हो तो, या हाई कैलोरीज डाइट लेते हो तो ये डाइटरी चेंजेस भी आपको करने होंगे, क्योंकि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रीटिंग द सीकेडी पेशेंट। आपको पोटेशियम लेवल आपका नहीं बढ़े, इसके लिए सर्टन फ्रूट्स जो है वो खाने में आपको अवॉइड करने होंगे। यू हैव टू अवॉइड टी, कॉफ़ी, सॉसेस, जैम एक्सेट्रा। देन इसके साथ अगर इफ़ यू आर habitual person of alcohol and tobacco, you have to stop this. Then CKD मैनेज करते टाइम पे हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो देना होगा वो पेशेंट के हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के ऊपर। तो पेशेंट का ब्लड शुगर एंड पेशेंट का बीपी, ऑल दिस शुड बी कंट्रोल वाइल ट्रीटिंग द CKD पेशेंट। तो उसके लिए भी हमको उसकी कॉजेज़ क्या है एंड ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको फोकस करना होता है वाइल ट्रीटिंग द CKD पेशेंट इन होम्योपैथी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द CKD इज अनडायग्नोज, क्योंकि इसके ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट को ईजिली समझ में भी नहीं आते जब तक आप लैब टेस्ट नहीं करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर आपकी बॉडी में एक किडनी खराब होती है तो सेकेंड किडनी कैन कैरी ऑन द फंक्शन। सो इस लीक की वजह से भी आपको पता नहीं चलता है जब तक आपके बॉडी में ज़्यादा डैमेज किडनी की वजह से नहीं हुआ है। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आपका रेगुलर चेकअप करें और ये सब जो कॉजेज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ होम्योपैथी इन किडनी डिजीजेस एंड किडनी फेल्यूर। जैसे मैंने बताया कि ऑल दिस किडनी कंडीशंस एंड किडनी प्रॉब्लम्स कैन लैंड अप इनटू किडनी फेल्यूर। सो किडनी फेल्यूर में होम्योपैथी का अप्रोच कैसे रहेगा? होम्योपैथी, इट इज एन आइडियल साइंस, इट इज एन जेंटल साइंस। होम्योपैथी, इट इज द रैपिड, जेंटल, परमानेंट हीलिंग, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। होम्योपैथी में वी हैव टू फॉलो सर्टन हैनीमैनियन प्रिंसिपल्स, जो फॉलो करने के बाद ही हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। सो द रोल ऑफ होम्योपैथी इन किडनी फेल्यूर इज मोस्टली होम्योपैथिक जो ड्रग्स हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो आपके किडनी फेल्यूर के कोई भी स्टेज में, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ किडनी फेल्यूर। फर्स्ट स्टेज में जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज होते लगता है एंड इट लैंड अप इनटू स्टेज 5, जिसमें वो पूरी तरह से जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है। सो ऑल दी स्टेजेस, बहुत सारे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनको डायलिसिस एडवाइस किया है, तो उस स्टेज पे भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो कि जिसकी वजह से आप डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हो एंड विथ होम्योपैथी यू कैन हैव अ गुड लाइफ। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने डायलिसिस किया है, डायलिसिस करने के बाद पेशेंट की बॉडी में एक वीकनेस आ जाते हैं, देर आर फ्यू चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर डायलिसिस, द बॉडी बिकम्स वीक। सो आफ्टर डायलिसिस ऑल्सो यू कैन टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो डायलिसिस के साइड इफेक्ट कम करेगा और हेल्प करेगा आपके क्रिएटिन लेवल को मेंटेन करने में, और जो 2 डायलिसिस के बीच में जो गैप है उसको जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो if you are on dialysis, then also you can take homeopathy, because homeopathy will help in increasing the gap between dialysis. बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर अ केस।
हमारे पास एक 72 ईयर्स फीमेल पेशेंट थी। उसके रिलेटिव उसको पेशेंट को लेके नहीं आ सकते थे, इसकी वजह से उन्होंने पेशेंट का एक वीडियो क्लिप लाया था। सो पेशेंट वॉज नॉट देयर, we just provided the information by the relative and a video clip of a patient. This lady is 72 years old, suffering from hypertension, diabetes and asthma. So इस लेडी का एज 72 ईयर्स होने की वजह से उसको अभी रिसेंटली डायग्नोज जो है हुआ था रीनल फेल्यूअर। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने उनको बोला था कि इस पेशेंट को डायलिसिस करना है, बट इस लेडी की एज 72 ईयर्स थी, तो जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज होने की वजह से डायलिसिस भी पॉसिबल नहीं था। तो इस केसेस में जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत है बट यू कांट डू द डायलिसिस, उस केसेस में भी होम्योपैथी बहुत आपको हेल्प कर सकती है। तो जैसे मैं ये केस बता रही थी, इस केस में अनकंट्रोल डायबिटीज होने की वजह से वो पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल करते टाइम पे उसका हाइपरटेंशन शूट हो रहा था, एंड with that the patient was suffering from asthma. So उसको इतने अस्थमा के अटैक आते थे कि उसका अस्थमा का अटैक कंट्रोल करते टाइम पे उसका बीपी शूट होता था। सो ऑल दीज कंडीशंस आर लाइक इंटररिलेटेड कि बीपी ठीक करने गए तो हाइपरटेंशन, शुगर ठीक करने गए तो हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन ठीक कर रहे तो अस्थमा का अटैक एग्रेवेट हो रहा है, एंड अस्थमा ठीक करने गए तो किडनी पे जो उसका लोड है वो आ रहा था। तो ये केस वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसको बोल दिया था कि डायलिसिस तो नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू डू ट्रांसप्लांट यू कैन डू, बट एट द एज ऑफ 72 ट्रांसप्लांट का भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। इसलिए उस पेशेंट ने उस टाइम पे होम्योपैथी का ऑप्शन चूज़ किया और वो आदित्य हॉस्पिटल में आए। तो ये पेशेंट खुद नहीं आ सकता था क्योंकि अस्थमैटिक अटैक उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे थे, डिस्निया उनको ज़्यादा था। तो उन्होंने वीडियो क्लिप पेशेंट का लेके आए थे और पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटिव ने दी थी। केस पूरा स्टडी करने के बाद जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्सेनिक आ रहा था। आर्सेनिक आने के बाद उसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो थे उसमें ये था कि पेशेंट को डिज़ायर फॉर चिकन, सार थिंग ये ज़्यादा था, एंड देयर वॉज अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर इन पास हिस्ट्री। इस लेडी को 3-4 बार फ्रैक्चर हुआ था। तो ऑल दिस हिस्ट्री एंड ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद डॉक्टर निकम, मेरे फादर, उन्होंने इस पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्सेनिक देने की जगह पे बाकी सब कंसिडर करके डिज़ायर फॉर चिकन, चिली पेशेंट, dyspnea which is aggravation from slight exertion, asthma, all these complaint ये कंसिडर करके सर ने उसको रेमेडी दी थी कैलकेरिया आर्स, which is a very rare remedy। तो कैलकेरिया आर्स उसका कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज जॉन शॉल्टन फिलोसॉफी, जॉन शॉल्टन वे। सो कैलकेरिया का थीम एंड आर्सेनिक का थीम मैच करके उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैलकेरिया आर्स आ रहा था। सो कैलकेरिया आर्स इस पेशेंट को देने के बाद वो पेशेंट दूसरे ही दिन उसको इन जनरल वेलबींग के साथ उसका जो इन जनरल स्वेलिंग था बॉडी में, एडिमा था, वो भी कम होने दिखा था, एंड उसका एपेटाइट भी मेडिसिन के बाद इम्प्रूव हुआ। सो ऑल जनरल्स वर इम्प्रूव एंड देन पेशेंट का अस्थमा भी इससे कवर हो गया। सो नॉट जस्ट रीनल प्रॉब्लम, renal issue is solved. Here the patient as a whole is cured with homeopathy. अभी भी पेशेंट वो क्रिएटिन लेवल मेंटेन करके है। यहाँ पे क्योर इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन मेंटेन द क्रिएटिन लेवल एंड वी कैन अवॉइड द डायलिसिस, वी कैन अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज। तो हमारा यहाँ पे जो होम्योपैथी का एस्पेक्ट होगा इन केसेस में जहाँ पे डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, पेशेंट का एज 72 है, इस केस में होम्योपैथी ने इस पेशेंट को ऐसा हेल्प किया है, उसका अस्थमा, उसका डायबिटीज, बीपी ये मैनेज करके उसको रीनल फेल्यूअर्स से बाहर निकाला है। सो विदाउट डायलिसिस द पेशेंट इज हैविंग अ गुड लाइफ एंड मेंटेनिंग हिज क्रिएटिन लेवल एट अ नॉर्मल। तो ये होम्योपैथी के रिजल्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो होम्योपैथी से ठीक हुए हैं। इवन वन मोर केस आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। दिस इज द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीरॉयड स्टार्ट करने ही होते हैं और ये एलोपैथिक जो नेफ्रोलॉजिस्ट है ये पेशेंट को तुरंत स्टीरॉयड पे शिफ्ट कर देते हैं। प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट में वीकनेस होते हैं, डिस्निया होता है, स्वेलिंग ऑफ द फेस होता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था जो इसका एज 27 ईयर्स का था। ये पेशेंट की केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था। इस पेशेंट को बचपन से, एज पर उसकी हिस्ट्री में आपको बता रही हूँ, इसको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसको क्रिकेटर बनना था। लेकिन जैसे उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था, डॉक्टर ने उसको स्टीरॉयड स्टार्ट कर दिए थे। तो स्टीरॉयड स्टार्ट करने के बाद उसको जो उसके डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया था। उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी, बाकी जो एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाता था। इवन स्पोर्ट्स में भी वो उतना उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दे पा रहा था। सो उसकी वजह से वो पेशेंट जो है उसने उसका जो करियर ऑप्शन है वो चेंज कर दिया था। उसको देन इंटरेस्ट आ गया मॉडलिंग में, क्योंकि इसको पहले से ही डांसिंग एंड ऑल में बहुत इंटरेस्ट था। तो ये पेशेंट जब सर के पास आया था, तो पेशेंट का अपीयरेंस से लेके हम होम्योपैथी में कैसे स्टडी करते हैं इसके लिए मैं आपको ये केस बता रही हूँ। द पेशेंट वॉज वेयरिंग अ गोल्डन टी शर्ट, ही वॉज वेयरिंग अ गोल्डन चेन, ही वॉज क्लीन शेव विद परफ्यूम एंड ऑल। और ये पेशेंट जैसे सर से बात कर रहा था तो उसमें वो दिख रहा था कि उसकी मैच्योरिटी लेवल उसके एज से कितनी ज़्यादा है। ही वॉज लिटरली बिहेविंग लाइक अ मॉडल। ये उसका केस लेने के बाद सर ने देखा कि उसको प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन है, बॉडी में इन जनरल स्वेलिंग है, ही इज ऑन स्टेरॉइड्स। और अभी उसके पेरेंट्स ने उसको इंजीनियरिंग फील्ड में डाला था जो उसको नहीं करना था। सो ही इज giving the exam of first year of engineering, which he was not interested, but still he was doing for the parents. And बाकी उसके mentals जो है उसमें वो obstinate था, and he is having dream that he is like a something, some great person. तो ये सब टोटलिटी एंड ऑल कंसिडर करके सर ने उसको रेमेडी जो दी थी वो थी वरैट्रम अल्बम। तो मैं यहाँ पे ये केस इसलिए अब आपको बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट का अपीयरेंस, इसको भी कितना ध्यान देना है। ये सब हमको हेल्प करेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढने के लिए। ऑल दीज ईच एंड इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जानकारी लेके सर ने ये रेमेडी दिया था। आप अगर देखेंगे तो रेपर्टरी में वरैट्रम अल्बम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पैथोलॉजी जो है अल्ब्यूमिनूरिया जो है वो कवर नहीं करी। बट इफ यू आर श्योर अबाउट योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, देन यू कैन ट्रीट द पेशेंट। तो ये पेशेंट को सर ने, दो देयर वॉज अल्ब्यूमिनूरिया में वरैट्रम अल्बम मेंशन नहीं था, फिर भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग अपीयरेंस एंड ये सब कंसिडर करके वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही ऊपर आ रही थी वरैट्रम अल्बम। सर ने जब उसको दी तो उस पेशेंट में उसका एडिमा जो है वो रिड्यूस हो गया, उसकी स्टीरॉयड का डोज जो है वो कम हो गया। वो पेशेंट ने उसका इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ। सो ये रिजल्ट्स है। इवन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ये रिजल्ट्स है। सो ये आपके ऊपर है, ये आपका स्किल है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। सो if you want to treat this CKD patient or any kidney disorder, सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना होगा वो होगी क्लासिकल होम्योपैथी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे फंडास हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है वो लोग यूज़ करते हैं। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, बट आपको क्लासिकल होम्योपैथिक वे से आप जाएंगे तो आप पेशेंट को अच्छे से परमानेंट क्योर भी दे सकते हो। तो क्लासिकल होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सिंगल रेमेडी पे फोकस करें, आप सिंगल रेमेडी एंड मिनिमम डोज दें, जिसमें आप हैनिमैनियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही वो रेमेडी चूज करें। माय फादर डॉक्टर निकम, जिनके पास से मैंने होम्योपैथी सीखी है,
हमारे पास में होम्योपैथी में अप्रोच यही होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ द टोटलिटी। तो ये टोटलिटी में क्या क्या आता है? सो पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज, उसका अपीयरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके PQRS सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उसके जनरल सिम्टम्स, उसके मेंटल्स। अगर आपको उस केस में कुछ एलिमेंट फॉर्म मिल रहा है तो एलिमेंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कॉज आपको पता है या एलिमेंट फॉर्म आपको मिल रहा है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। सो एलिमेंट फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमने थर्मल पे ज़्यादा वर्क किया है। अगर आप थर्मल मैच करके रेमेडी देते हो तो उसके रिजल्ट बहुत एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग होते हैं। सो थर्मल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मायाजम, अगर आप मायाजम के कंसिडर करके वो मायाजम ट्रीट करने वाली रेमेडी दे रहे हो एंड वो पैथोलॉजी अगर उसमें कवर हो रही है, देन ऑल्सो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन होम्योपैथी। तो ये सब चीज़ें एज अ होम्योपैथ हमको देखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों के इम्पोर्टेंस दे के आप रेमेडी चूज़ करेंगे तो वो आपको अच्छे से रिजल्ट्स दे सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है? सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द रेमेडी विच इज गिवन टू द इंडिविजुअल, जो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम रेमेडी देते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। बिकॉज द पेशेंट इज यूनिक, द पेशेंट इज डिफरेंट, ईच केस इज डिफरेंट। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि इस पेशेंट को मैं कैसे ठीक करूँ, इस पेशेंट में वो इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। होम्योपैथी में वी हैव टू डू इंडिविजुअलाइजेशन। ईच इंडिविजुअल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो ये लॉ को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ सिमिलर्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, जो हैनीमैन प्रिंसिपल्स में बताए गए हैं। तो होम्योपैथी का रोल जो है इन केसेस में आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथी विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द डायलिसिस, इट विल हेल्प इन अवॉइडिंग डायलिसिस। अगर आप जल्दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो वी कैन अवॉइड द डायलिसिस। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे CKD पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एलोपैथी लेके ट्राई करके लास्ट ऑप्शन होम्योपैथी को देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग होम्योपैथी को सबसे पहले चूज करें, क्योंकि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। बिकॉज जब भी आप लास्ट स्टेज में होम्योपैथी के पास आते हो, सो एट दैट टाइम वी हैव टू ट्रीट द किडनी डिजीज। विद दैट देर विल बी एड ऑन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ योर एलोपैथिक मेडिसिन। तो ये भी हमको ट्रीट करने होते हैं। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि होम्योपैथी विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द किडनी फंक्शन। होम्योपैथी में आप डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिन, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रिएटिन 10 है तो क्रिएटिन 10 होने के पहले अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो देयर विल बी गुड रिजल्ट्स इन होम्योपैथी। लेकिन अगर आप क्रिएटिन 10 के बाद, 10 के लेवल के बाद अगर आप होम्योपैथी के पास आते हो, होम्योपैथ के पास आते हो, तो वहाँ पे हम उसको जो है क्लियरली बोल देते हैं कि ईच केस इज डिफरेंट। सो अगर आपकी क्रिएटिन लेवल हाई है और आपके कुछ टॉक्सिक सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर वाइटल्स आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हाई क्रिएटिन लेवल, ब्रेथलेसनेस पेशेंट को और ज़्यादा हो रहा है, तो ये कुछ साइंस देख के हमको उसको एडवाइस भी करना होता है कि आप इस टाइम पे एक डायलिसिस कर लो और फिर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करो। क्योंकि ऑल द टॉक्सिक लेवल्स बिकॉज ऑफ द क्रिएटिन विच वी हैव टू कंसिडर एज अ डॉक्टर, ये हमारी ड्यूटी है कि पेशेंट को जो है वो ठीक से बताना है, उसको रीअश्योरेंस देना है और उसको सच भी बताना है कि किस लेवल में कहाँ पे काम करना है। सो होम्योपैथी में आपको अगर आप ट्रीट करते हो पेशेंट को तो आपको स्कोप ऑफ होम्योपैथी एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी भी पता होनी चाहिए। CKD में देर इज नो लिमिटेशन, क्योंकि आप सब स्टेज में आप होम्योपैथी ले सकते हो। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप 10 क्रिएटिन के बाद आएंगे और आप बोलेंगे कि अभी हमको डायलिसिस नहीं करना है, सिर्फ होम्योपैथी से ही कंटिन्यू करना है। कभी कभी बॉडी में टॉक्सिक चेंजेस भी आ सकते हैं, तो वो सब देख के, वो सब ऑब्जर्व करके ही आप एक होम्योपैथिक की राय के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हो।
तो एक डायलिसिस करने के बाद वो टॉक्सिसिटी कम होती है, फिर उसके बाद आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आगे का जो डायलिसिस का गैप है वो बढ़ेगा, और आपको डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी जो अगर आप समझो हफ्ते में 3 बार कर रहे हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद हफ्ते में 1 बार, देन ग्रेजुअली महीने में 1 बार, ऐसे करके आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि इस केसेस में ये ट्रीट करना इज़ वेरी चैलेंजिंग टू ट्रीट रीनल फेल्योर केसेस। कभी भी पेशेंट जो है वो यूरेमिक कोमा में लैंड अप हो सकता है टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ने के बाद। तो ऑल दिस क्लिनिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर एक्सपीरियंस काउंट्स, कि आपका कितना एक्सपीरियंस है हैंडलिंग ऑफ द किडनी पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको पता होगा कि कौन से साइंस जो है वो टॉक्सिक लेवल बता रहे हैं, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको बता रहा है। सो होम्योपैथी में आपको केस टेकिंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो केस टेकिंग में हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल एनालिसिस जो है उसका करते हैं। ये सब उसके एस्पेक्ट, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, उसका एनालिसिस करके, फिर उसको एक यूनिक रेमेडी देते हैं जो उसको पूरी तरह से ठीक करता है, जिसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में अगर आपको एलिमेंट फॉर्म मिल गया तो इट विल हेल्प अस। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट में ब्लड लॉस है, वो अगर कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट CRF में लैंड अप हो गया, तो देर आर रेमेडीज लाइक एसिड फॉस which will be very helpful. If the patient is suffering from CRF, which and the cause is like because of fluid loss or blood loss, then you can choose China also, China Rs also. These are very good remedies if you know the ailment form of the case, if you know the cause of the disease. Even Aurum is very helpful in all these kidney failure diseases. Like whenever there is a kidney failure condition associated with hepatic and other heart disease complaint, उसके साथ अगर ये है तो Aurum is also very good. But you have to match the totality of the patient and constitution of the patient. अगर ये आप मैच करके ये रेमेडीज देते हो जिसमें वो एलिमेंट फॉर्म जो है कवर अप हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट होम्योपैथी में मिलेंगे। सो आपका होम्योपैथिक नॉलेज भी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर ट्रीटिंग दिस केसेस वी हैव टू कवर द पैथोलॉजी ऑल्सो। सो वो पैथोलॉजी, एग्जाम्पल अल्ब्यूमिन्यूरिया, वो भी उसमें कवर हो रहा है कि नहीं वो रेमेडी में, ये भी हमको देखना है। फॉर ट्रीटिंग दिस कंडीशंस देयर विल बी n number of medicines in homeopathy. Like for albuminuria there are more than 50 remedies, एकोनाइट से लेके जिंकम तक। एवरी रेमेडी इज कवरिंग द एल्ब्यूमिनिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडीज है आर्सेनिक इज देयर इज नाइट्रिक एसिड, sarsaparilla, then there will be Aurum, China, so many remedies are there. बट इसमें आपको पेशेंट के सिम्टम सिमिलैरिटी मैच करके ही ये रेमेडी जो है वो चूज करनी है। अगर इसमें भी आप थर्मल का फिल्टर यूज करते हो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि थर्मल मैच करके अगर आप रेमेडी डिसाइड करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा वो। सो थर्मल्स, मायाजम, पैथोलॉजी, एलिमेंट फ्रॉम, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर टू चूज द रेमेडी। तो अल्ब्यूमिनिया में आप रेपेटरी में चेक करोगे तो इतने सारे ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग में से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो आपके पेशेंट के सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से। देन होम्योपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि होम्योपैथी इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप आजकल के किडनी के ट्रीटमेंट देखेंगे तो देयर विल बी लाइक डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा है, पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। उसमें अगर कंपैरेटिवली होम्योपैथी इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। होम्योपैथी में जब भी हम ये पेशेंट मैनेज करते हैं किडनी फेल्यूर्स के, तो सबसे ज़्यादा वी हैव टू मैनेज द कॉज, जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की डायबिटीज़ एंड शुगर लेवल को हमको कंट्रोल करना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द एलोपैथिक मेडिसिन फॉर देयर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। सो जैसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं with the constitution medicine, we can gradually reduce the dose of allopathic medicines like anti-diabetic and anti-hypertensive also. So gradually ये हमको कम करना है, तभी जाके हमको अच्छे से रिजल्ट आ सकता है।
now it's time to concluding the session. So thank you everyone for joining us, and I hope कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. Thank you.